हे हेलो एंड वेलकम बैक टू PCS सक्सेस वेल। आज हम कंटिन्यू करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स इन इंग्लिश सीरीज़, फुल बुक सीरीज़। ओके, सो इस बुक को ख़त्म करने में अब 2 से 3 वीडियोस लगेंगे। मैंने कल नहीं कंप्लीट किया था, 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से लगातार मैं इस पर कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सो अभी नेक्स्ट जहाँ तक हमने किया था, रेलवे के करंट अफेयर्स को मैंने अभी टच नहीं किया है, जो बुक में दी हुई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी BPSC और CDPO और UPPSCS का जो था वो हो चुका है। सो अब रेस्ट अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर जुलाई तक मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं, प्लस साथ में प्रैक्टिस सेट भी है एक, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, so first one, which operation was started by Railway Protection Force in June 2022 to prevent smuggling of narcotics through rail? So it's Operation Narcos. So Operation Narcos start किया रेलवे ने to prevent smuggling of narcotics through rail. Okay. Next, which policy was launched in June 2022 by Sri Ashwini Vaishnaw in the field of innovation of Indian Railways? So it's a startup policy for railways in the field of innovation of Indian Railways. This policy is startup policy for railways. Next, now let's see something about Bharat Gaurav train. So Bharat Gaurav train is a central government initiative under Dekho Apna Desh to promote domestic tourism. So it's to promote the domestic tourism. Next, the first service journey of the theme based Bharat Pride train was started on 14th June 2022 from Coimbatore to Sydney. ओके, सो कोयम्बटूर से सिडनी तक का फर्स्ट जो भारत गौरव ट्रेन का ट्रेन चला था। ठीक है, सदर्न रेलवे हैज़ बिकम द फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे टू गेट द फर्स्ट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर द भारत गौरव स्कीम. So which railway? Southern Railway. With whose cooperation the first Bharat Gaurav tourist train running on the Ramayan circuit marked under the Swadesh Darshan scheme is being operated. So it's ऑपरेटेड वाया IRCTC. अभी इसमें रामायण सर्किट की बात करें तो टोटल कितने शहरों को जोड़ा गया रामायण सर्किट से? 15 शहर, जिसमें 3 बिहार के हैं। कौन कौन से? सीतामढ़ी, पंडौरा धाम, बक्सर में राम रेखा जो है बक्सर में, वहाँ से, और एक दरभंगा में। सो 3 शहर जो बिहार के हैं वो रामायण सर्किट से जुड़े हुए हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर, 3। ठीक है। नेक्स्ट, currently IRCTC is already running many tourist circuit train in railways. With the implementation of this policy from 1st April 2022, all tourist circuit train will now be operated under the guidelines issued under this policy. Okay. Next, who co-chaired the 14th meeting of the Joint Committee on Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project in June 2022? So it was chaired by Sri Ashwini Vaishnaw. Next, National High Speed Rail Corporation Limited is working with the company of which country in the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Corridor project? So it's Japan Railway Track Consultant Company Limited. Japan Railway Track Consultant Company Limited. Next, together these two companies are working on India's first bullet train project. So which two companies are working on India's first bullet train project? Japan Railway Track Consultant Company Limited, and also along with this National High Speed Rail Corporation Limited. Next, who has become the first railway officer to complete the Ironman triathlon held in Hamburg, Germany? So he is Shreyas Hosur, officer of Southwestern Railway. Shreyas Hosur. The event consisted of swimming of 3.8 km, cycling 180 km and running for 42.2 km, which was completed by Shreyas Hosur in 13 hours 26 minutes. Okay. Next, the railway minister decided to disband the 5 railway engineer territorial army regiment located at Jhansi, Kota, Adra, Chandigarh and Sikandrabad. Next, Indian Railway has been honored with UIC International Sustainable Railway Awards in the category of Best Use of Zero Carbon Technology for providing direct solar powers to 25 kV AC
traction system at Berlin on 1st June 2022. So, in which category? For the best use of zero carbon technology. Next, which campaign was launched by Indian Railway from 3rd May to 31st May 2022 in collaboration with Railway Protection Force to ensure safe travel of women? So, this operation was Operation Mahila Suraksha. Operation Mahila Suraksha for the safe travel of women in railways. Next, in May 2022, the Railway Minister flagged off 12,000 coach of LBH Linkhofen bus type. Where was these coaches being made? So, LHB coaches were being made in Chennai Integral Coach Factory. Chennai Integral Coach Factory. Next, with whom did the Railway Protection Force sign a memorandum of understanding for a smuggling-free nation? So, for a smuggling-free nation, Railway signed memorandum of understanding with Association of Voluntary Action. Next, which operation was conducted by RPF from 5th April to 30th April 2022 to detect, confiscate illicit liquor, tobacco transport? So, illicit liquor and tobacco transport को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन विजिलेंट चलाया गया रेलवे के द्वारा. विच ऑपरेशन? ऑपरेशन विजिलेंट. नेक्स्ट, कोंकण रेलवे हैज़ इलेक्ट्रीफाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स एंटायर सेक्शन टिल मार्च 2022? So 100%. Konkan Railway has electrified 100% of its entire section. Next, which zone of Indian Railway has achieved 100% electrification of its 2848 networks? यानी 2848 networks. So it's Eastern Railway. Eastern Railway ने 100% electrification achieve कर लिया है. Next, India-Bangladesh rail relation. Which new passenger train was jointly launched between the two countries by the Minister of Railways of India Sri Ashwin Vaishnaw and Minister of Bangladesh Muhammad Nurul Islam Sujan on 1st June 2022? So it's Mithali Express. Mithali Express न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलेगा. जलपाईगुड़ी इंडिया में और ढाका बांग्लादेश में. अर्लियर कौन कौन सी ट्रेनें चल रही थी? तो बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस. बंधन एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता टू खुलना एंड मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता टू ढाका. बांग्लादेश रेलवे हैज साइंड एग्रीमेंट विथ whom to buy 420 broad gauge wagons from India. So in Hindustan Engineering and Industries Limited. Indian Railway for the first time sent a special parcel train full of goods containing dry chilies to Bangladesh. Okay, so to which country India sent the special parcel train full of goods to? So it sent to Bangladesh. It ran between Reddypalam, Guntur to Benapole, Bangladesh. Next, major achievements of Indian Railway in the financial year 2021 to 2022. So how many kilometers of route electrified by Indian Railway during the financial year 2021 to 2022? So it's 6,366 kilometers. Routes are electrified. This record became the highest electrification in any financial year in the history of Indian Railways. Next, as on 31st March 2022, out of 65,141 kilometers route of the total broad gauge network of Indian Railway, how many broad gauge route kilometers have been electrified? So Indian Railway has electrified 52,247 route kilometers. This is 80.2% in the total broad gauge network. So 80.2% has been electrified. In the financial year 2021 to 2022, the construction of new line doubling was completed in how many kilometer route? So 2,904 kilometer. Target was to complete 2,400 kilometer. It has overdone its target. So in which financial year Indian Railway produced the highest number of electric locos in its history? So it's year 21 to 22. Next, Chittaranjan Locomotive Limited produced the maximum number of electric locomotive in the financial year 2021 to 2022. It made a record by producing how many electric engines? So Chittaranjan Locomotive Works has produced 486 locomotive electric engines. Okay. All previous records for manufacturing most electric locomotives in a single financial year were broken.
In the financial year 2021 to 22, out of 367 locomotive made in Banaras Rail Engine Factory, 4 locomotives were exported to the country, and that country is Mozambique. So India exported 4 locomotives to which country? To Mozambique. Next, who won the Abdullah Khan Hockey Cup tournament held at Major Dhyanchand Stadium in Bhopal? So men's hockey team of Indian Railway won this Abdullah Khan Hockey Cup. किसने जीता? मेंस हॉकी टीम ऑफ इंडियन रेलवेज. नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप हेल्ड इन कोहिमा नागालैंड. इट वॉज ऑल्सो ओन्ड बाय इंडियन रेलवे वुमेन्स टीम. नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप. नेक्स्ट, वेयर इज द रेलवे सेटिंग अप वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी एट कॉस्ट ऑफ 30.76 करोड़. सो इन दिल्ली किशनगंज. दिल्ली किशनगंज में वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी इंडियन रेलवे ओपन कर रहा है. ओके. विच डिवीज़न ऑपरेटेड द 100th टेक्सटाइल ट्रेन? मुंबई सेंट्रल डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न रेलवे. ओके. 100th टेक्सटाइल ट्रेन. दिस ट्रेन वॉज रन फ्रॉम चलथान सूरत रीजन टू संक्रेल खड़गपुर डिवीज़न एरिया. द फर्स्ट टेक्सटाइल एक्सप्रेस वॉज स्टार्टेड ऑन 1st September 2021. Which scheme has been launched by RailTel based on the use of its public Wi-Fi service at 100 railway stations? So the scheme is PM WANI. Okay, PM WANI यानी Prime Wi-Fi Access Network Interface. Prime Wi-Fi Access Network Interface. RailTel is a mini Ratn public sector undertaking under the Ministry of Railways, which has been set up by the Ministry of Railway to implement the PM Gati Shakti initiative in a focused and time-bound manner. So it's Directorate of Gati Shakti. Next, in the financial year 2022 to 2023, under Self-Reliant India, 2000 km railway network will be brought under Kavach security system. Kavach system. So Kavach system. 400 new Vande Bharat train will be developed and manufactured in the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminal will be set up in the next 3 years. Okay. Next, what is the objective of National Rail Plan brought by Indian Railway for 2030? So National Rail Plan में क्या है? The share of railways in freight traffic is to be increased by to 45%. मतलब freight traffic जो रेलवे का होगा उसको increase करना है up to 45%. Next, which railway station became the first railway station of East Coast Railways to implement One Nation One Product? So it's Visakhapatnam railway station. Next, the redeveloped Rani Kamalapati railway station has inaugurated by Prime Minister Modi on 15th November. Where is the station located? So it is located in Bhopal and former name was Habibganj railway station. So Bhopal railway station का भी rename हुआ है, वो है भोज railway station. Next, Indian first class world class the redeveloped railway station over which 5-star hotel is built. So 5-star hotel has been built at which station? So Gandhinagar railway station. Next, India's first 3 AC economy coach Gati Shakti Express runs from where to where? So it runs from Anand Vihar terminal to Patna junction. Gati Shakti Express. Next, which railway coach factory has started manufacturing the first AC 3-tier economy class coach for Indian Railway? So railway coach factory Kapurthala. Next, what is the name of first passenger train to run entirely on electricity? So it's Brahmaputra Mail, Delhi to Kamakhya. Brahmaputra Mail will run on entirely on electricity from Delhi to Kamakhya. The present railway minister Ashwin Vaishnaw. So who is the present railway minister? Ashwini Vaishnaw. Ashwini Vaishnaw is a member of Rajya Sabha from Odisha. He is the alumni of IIT Kanpur and former IAS officer. So presently the Minister of State for Railway is in charge. कौन है? Darshan Vikram Jardos. Next, presently Chairman and CEO of Railway Vinay Kumar Tripathi. आज़ादी का अमृत महोत्सव by Indian Railway. So on this occasion, temporary stalls of handloom and khadi item are being set up by Railway at 75 railway stations of the country to promote self-reliant India. During the 75th week of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Indian Railway has decided to run 75 new Vande Bharat Express so that all parts of
द कंट्री कैन बी कनेक्टेड बाय रेलवे। सो प्रेजेंट में भी कौन सा है, दो ही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो रन कर रही है, न्यू दिल्ली टू वाराणसी और दूसरा न्यू दिल्ली टू कतरा। नेक्स्ट, to commemorate the 75th anniversary of India's independence, Indian Railway decided a new version of which song to the nation. So it's Mile Sur Mera Tumhara. Next, the new version of the song Mile Sur Mera Tumhara has been composed and sung by all railway employees and officers. Next, Indian Railway players performance in Tokyo Olympics. So how many players participated from railway? 25 players. Along with 25 players, 6 coaches and 1 physio of Indian Railway were also part of Tokyo Olympics. So how many players won medals? 5 players among 25 won the medals, and they are Saikhom Mirabai Channu, North Frontier Railway के हैं, and weightlifting category silver. Okay, and here is the amount given by the railway. Ravi Kumar Dahiya, Northern Railway, wrestling में silver. Bajrang Punia, Northern Railway, bronze. Amit Rohit Das, Western Railways, bronze, and Nilkant Sharma, Western Railway, bronze. हॉकी टीम, ठीक है। आगे देखते हैं, वंदना कटारिया, द फीमेल हॉकी प्लेयर इन टोक्यो ओलंपिक 2020 बिलोंग टू विच रेलवे जोन? सो सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। वंदना कटारिया फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। नोट, आउट ऑफ द टोटल 16 प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम विच सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020, 12 players were selected from the railways. The Indian men's hockey team at the Olympics also had 2 players from Indian Railways. Next, on which river the world's highest railway bridge is being built? So world's highest railway bridge बन रहा है चेनाब रिवर पे, 359 मीटर इसकी सी लेवल से हाइट है, and it is 35 meter higher than the Eiffel Tower of Paris. The bridge is part of the Udhampur Srinagar Baramulla rail link project. Next, where is the country first railway cable bridge being built on Anji river? So अंजी रिवर पे जो रेलवे केबल ब्रिज बन रहा है वो कटरा से रायसी इन जम्मू इसको जोड़ेगा, एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज अंजी ब्रिज। अंजी रिवर पर है अंजी ब्रिज। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज सेतु स्तंभ इज बीइंग बिल्ड ऑन विच रिवर? सो इट्स बिल्ड ऑन इजाई रिवर। सो अंजी रिवर, इजाई रिवर और चेनाब रिवर, ये तीनों याद रखेंगे जो रेल ब्रिज से क्वेश्चन आएंगे। सेतु स्तंभ है इजाई ब्रिज पर मणिपुर में। द हाइट ऑफ दिस ब्रिज पिलर इज 141 मीटर। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ जिरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट ओवर द सी? सो ये है मंडपम तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। इट हैज़ बीन नेम्ड पंबन रेलवे ब्रिज विथ लेंथ 2.05 किलोमीटर। पंबन रेलवे ब्रिज विल कनेक्ट रामेश्वरम द्वीप विथ तमिलनाडु मेनलैंड, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप से तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा मंडपम, ठीक है। मंडपम तमिलनाडु में है होगा, कनेक्ट करेगा। और कहाँ से, इसका नाम क्या है? पंबन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज बीइंग बिल्ट एट विच स्टेशन? सो पहले कौन सा था? हुबली रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। अब है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर्नाटका में, इसकी लंबाई होगी 1505 मीटर्स। Okay, next, which train name has been approved by the Ministry of Railway to change the name of Netaji Express? So हावड़ा कालका मेल जो है, हावड़ा कालका मेल फेमस ट्रेन है और इसको अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन विच वॉज सर्टिफाइड एज ग्रीन बिल्डिंग बाय IGBC ओनली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। सो इट्स केवड़िया रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, the Jayanagar Kurtha rail section is a part of Jayanagar Bijalpura Barbidas rail project which is fully funded by the government of India. Under its first phase, the rail line from Jayanagar in Madhubani district of Bihar has been connected to Kurtha, Nepal. So Jayanagar Kurtha नेपाल में आता है, जयनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द रेवाड़ी मदार सेक्शन to the nation. This section is part of which dedicated freight corridor? So रेवाड़ी मदार कौन से फ्राइट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो वेस्टर्न कॉरिडोर का। नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन ऑफ तेलंगाना वॉज रिसेंटली कनेक्टेड विथ रामायण सर्किट ट्रेन?
सो रामायण सर्किट में 15 सिटीज़ है, और भद्राचलम जो रोड स्टेशन है, भद्राचलम रोड स्टेशन तेलंगाना में, वो 15वां सिटी जो है जुड़ा है रामायण सर्किट से। ओके, नेक्स्ट, विच पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू मेक इट ईजियर टू कंडक्ट बिजनेस विद रेलवे? सो फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड टाइड अप विथ whom for fast and optimized automated access to coal freight data through FOIS, Freight Operation Information System. So it has tied up with CRIS, Center for Railway Information System. आगे देखते हैं, where was India's first pod hotel inaugurated? So it was inaugurated at Mumbai Central Railway Station, first pod hotel. It has been developed jointly by IRCTC and Indian Railways. Next, who has become the world's 4th largest driverless metro railway network? So Delhi Metro Railway has become the 4th largest driverless metro network. Which railway zone started long distance train named Trisul and Garud? Long distance train name South Central Railway, South Central Railway, Trisul and Garud long distance train है, ठीक है। अभी कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। विच रेलवे स्टेशन वॉज अवार्डेड विथ अ 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट बाय FSSAI इन सितंबर 2021? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, 5th स्टेशन है ये। सर्टिफिकेट of eat right station is given to those stations which set a standard in providing safe and nutritious food to passengers. 5-star eat right station to get certification from FSSAI. फर्स्ट कौन सा था? आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली का। फिर सेकंड था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। थर्ड मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फोर्थ बड़ौदा रेलवे स्टेशन। और फिफ्थ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन अभी बना है। Next, the Ministry of Railway has fixed 50% subsidy on transportation of notified fruits and vegetables by Kisan Rail. Under which scheme of the Ministry of Food Processing Industries this provision has been made? So, Operation Green Top to Total. Operation Green's Top to Total. ठीक है। And proposal to run Kisan Rail was made in the budget 2021 to 2021, जो फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 का बजट था, उसमें किसान रेल रन करने का प्रोजेक्ट था टू ट्रांसपोर्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और पहली कहाँ से चली थी? अभी क्वेश्चन भी आया था, देवलाली टू दानापुर। ठीक है, अभी तक टोटल 1000 ट्रेन चली हैं। द गवर्नमेंट एम्स टू मेक रेलवे अ ग्रीन रेलवे बाय 2030 बाय मेकिंग इट नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, नेट जीरो रेलवे का जो टारगेट है 2030 का, उसमें नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2030 तक का। द कैबिनेट साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन टू मेक इंडियन रेलवे सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवे फर्स्ट रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस वॉज लॉन्च बिटवीन नेलामंगला नियर बेंगलोर टू बेल नियर सोलापुर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, फर्स्ट रोरो जो सर्विस है वो नेलामंगला से बेल तक चलेगी। ठीक है, रोरो सर्विस क्या है? प्लान टू कैरी रोड व्हीकल लोडेड विद वेरियस गुड्स टू ओपन गुड्स रेलवे वैगन। ठीक है, ट्रक से डायरेक्ट लोड हो जाएगा ट्रेन पे और वो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे उसे अनलोड किया जाएगा। इंडियन रेलवे प्लान टू इंस्टॉल RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग इन ऑल इट्स कोचेज बाय दिसंबर 2022। सो फार RFID टैग्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन 2300 कोचेज। Next, electric loco factory was established at Madhepura and diesel loco factory at Madhauda. So, electric loco factory मधेपुरा में इंस्टॉल किया गया है एंड डीजल लोको फैक्ट्री मधौरा में। नेक्स्ट, अंडर मेक इन इंडिया 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12B was made at the Madhepura factory. The first commercial operation of this powerful engine was between Deen Dayal Upadhyaya station to शिवपुर स्टेशन। मुगलसराय स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन अब बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हाई हॉर्स पावर इंजन्स वेयर ऑपरेटेड ऑन रेलवे मेजर रेलवे लाइन। इंडिया बिकेम द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम अप ऑन द प्रेस्टिजियस कंट्री टू मैन्युफैक्चर मोर हॉर्स पावर इंजन इंडिजिनसली। ठीक है, तो इंडिया की क्या पोजीशन है? 6th कंट्री टू प्रोड्यूस द मोर हॉर्स पावर इंजन इंडिजिनसली। Indian Railway with Madhepura Electric Locomotive Private Limited signed a purchase cum maintenance agreement for 12,000 horsepower locomotive from Alstom Company of France. कौन सी कंपनी? Alstom Company of France.
नेक्स्ट, Indian Railway started its first restaurant on wheels, रेल भोजनालय at आसनसोल रेलवे स्टेशन. सो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आसनसोल में. इसमें क्या होगा? 2 कोच जो हैं उसे सिग्नेचर रेस्टोरेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है. इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स नेम्ड आस्क दिशा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पैसेंजर. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैट बॉक्स? आस्क दिशा. Now it has also been upgraded and developed to interact with railway customer in Hindi language. Next, HRMS mobile app was launched recently. Through this mobile app, all the employee can get all the information related to their service. So HRMS app introduced किया गया रेलवे में for the employees. Where did the Indian Railway start its first waste to energy plant? So it was started in Bhubaneswar. This is the India's 4th and first railway plant. Next, Indian Railway has announced an integrated helpline number 139 for any help, inquiry and grievances redressal during the journey. So, what is the number? 139 for grievance redressal. Next, Indian Railway 3 new dedicated freight corridor. पहला कौन सा है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता टू मुंबई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली टू चेन्नई, और ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है खड़गपुर टू विजयवाड़ा. ठीक है. ईस्ट कोस्ट है और ईस्ट वेस्ट है. तो ईस्ट वेस्ट है कोलकाता से मुंबई और नॉर्थ साउथ है और साथ में है ईस्ट कोस्ट खड़गपुर से विजयवाड़ा. वाईफाई प्रोवाइडर फर्स्ट रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल जो बनाया. फिर 1000 कौन सा था? रे रोड. और 5000 रेलवे स्टेशन टू प्रोवाइड वाईफाई मिदनापुर. और अभी तक 6000 हुआ है तो 6000 रेलवे स्टेशन कौन सा है? उबरनी. ये मार्च 2022 में प्रोवाइड किया. द वाईफाई इज़ बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द ब्रांड नेम रेल वायर. सो कौन से ब्रांड नेम के अंडर में रेलवे प्रोवाइड करता है वाईफाई? रेल वायर. रेलवे एम टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई एट ऑल रेलवे स्टेशन इन द कंट्री. रेलवे मिनिस्टर लॉन्चेस कोरस इन इंडियन रेलवे. कोरस मतलब कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी. सो कोरस का मतलब क्या है? कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी. क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, इंडियन रेलवे लॉन्चेस कोरस इन इंडियन रेलवेज. व्हाट डज कोरस स्टैंड्स फॉर? सो इट स्टैंड्स फॉर कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी. नेक्स्ट, इंडियन रेलवे फर्स्ट कमांडो यूनिट कोरस डिप्लॉयड इन छत्तीसगढ़. सो पहली बार कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? छत्तीसगढ़ में कोरस को. द मॉडर्न कमांडो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन रेलवेज इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट जगधारी हरियाणा. और इनका ट्रेनिंग सेंटर, कोरस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? जगधारी हरियाणा में. इंडियन रेलवे रीनेम द कंट्री मेड ट्रेन 18 एज वंदे भारत एक्सप्रेस. सो ट्रेन 18 का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस. दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन. It has been made by Integral Coach Factory. The first Vande Bharat Express ran from Delhi to Varanasi. Next, Meri Saheli Pahal. Women travelling by train are being provided security during the journey under this campaign. Meri Saheli Pahal. Meri Saheli initiative was first started by South Eastern Railway. Now it has been implemented in the entire railway. अब मेरी सहेली सारे रेलवे जोन्स में इम्प्लीमेंट की गई है. पहले साउथ ईस्टर्न रेलवेज में लाया गया था. The powerful twin electric locomotive engine Tejas with aerodynamic design was manufactured at Chittaranjan Rail Locomotive Plant. So Tejas का जो ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है वो चित्तरंजन रेल लोकोमोटिव प्लांट में मैन्युफैक्चर किया गया है. तेजस इंजन इज़ मेड ऑफ 12,000 हॉर्स पावर, 6,000 हॉर्स पावर प्लस 6,000 मतलब डबल है तो 6,000 का 2 हॉर्स पावर का इंजन है. It can be run at a speed of more than 160 km per hour. Indian Railway ran the first commercial train from Kishanganj in Delhi to Jhirnia in Tripura. So पहला कमर्शियल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला? किशनगंज रेलवे इन दिल्ली टू जिरनिया इन त्रिपुरा. नेक्स्ट, India's first leased parcel cargo express train was run from Coimbatore in Tamil Nadu to Delhi. Leased parcel cargo train. ठीक है. Essential goods like medicine, stationery, food and drink can be transported by this train by covering long distance in less time. Recently, what was the name given to the longest train running in Indian Railway? So it was named Sesnag. टोटल लेंथ 2.8 किलोमीटर. शेषनाग का टोटल लेंथ कितना है? 2.8 किलोमीटर. रन बाय साउथ ईस्टर्न
Central Railways, including total 4 goods train. RPF renamed as IRPFS. IRPFS stands for Indian Railway Protective Force Services. So अब RPF का नाम हो गया Indian Railway Protective Force Services. Next, first double decker Uday Express ran between Coimbatore to Bangalore. Second double decker Uday Express runs between Visakhapatnam to Vijayawada. The first double stack container train was run by Bhavnagar division of Western Railway. Next, in which state Indian Railway is building the world's first electrified double stack container tunnel? So it's in Haryana. At which railway station Atma ATMA automated ticket checking and managing access machine was installed for the first time? So ATMA yani Atma, it has been installed in Nagpur. Which railway zone started ticket booking through QR code? North Western Railway. QR code के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं. Through which mobile app a passenger can contact the railway police and redress their grievances? So Sahyadri mobile app. अब देखते हैं नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन चेंज्ड इन रिसेंट ईयर. सो मियान का बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया महेश नगर हॉल्ट. सो मियान से एम से महेश याद रखेंगे. केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन. हबीबगंज का रानी कमलापति स्टेशन. फैजाबाद का अयोध्या कैंट. सो फैजाबाद अयोध्या कैंट. मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका बनारस जंक्शन. मंडुआडीह पहले था, अब हो गया बनारस जंक्शन. सो मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन. चेन्नई सेंट्रल का आर्कियोलॉजिकल थलाइवर डॉक्टर MGR सेंट्रल. मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन. भोपाल का भोज मेट्रो, भोपाल मेट्रो रेल का भोज मेट्रो. एंड बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन. प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन. और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन. कोल्हापुर रेलवे स्टेशन श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल. और पतालपानी रेलवे स्टेशन का तांत्या मामा रेलवे स्टेशन. नेक्स्ट, एट विच रेलवे स्टेशन अ फन जोन हैज़ बीन मेड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले? विशाखापट्टनम में फन जोन बनाया गया. फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी गिवन प्लैटिनम रेटिंग बाय IGBC सिकंदराबाद. न्यू रेलवे जोन ऑफ इंडिया साउथ कोस्ट रेलवे. हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम. और फिर है द ऑपरेशन ऑफ हिम दर्शन एक्सप्रेस बिटवीन कालका हरियाणा टू शिमला वॉज स्टार्टेड. सो हिम दर्शन एक्सप्रेस कालका से शिमला जाएगी. वेयर वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी ऑफ इंडियन रेलवे ओपनड? सो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस मुंबई में. नेक्स्ट, विच रेलवे जोन हैज़ अरेंज्ड पिंक कोचेज फॉर वुमेन पैसेंजर? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे. पिंक कोचेज किसने लाया? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे. Which first railway zone of Indian Railway was succeeded in installing bio toilet inside all its trains? So West Central Railway. West Central Railway ने bio toilet install किया है in all its coaches. Central Railway Station became India's first railway station to become blind friendly station. वो है मैसूर का स्टेशन. ठीक है, blind friendly. At which railway station the first health ATM was installed? So चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ. Next, Indian Railway announced to increase safety awareness among its passenger with the help of cartoon Gappu Bhaiya. Okay, cartoon ने गप्पू भैया. Who became India's first private railway station? So पहला private railway station बना है हबीबगंज रानी कमलापति स्टेशन. Next, India's first private train तेजस एक्सप्रेस. फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस चला लखनऊ से दिल्ली, फिर सेकंड अहमदाबाद से मुंबई, और थर्ड इंदौर टू वाराणसी. दिस इज़ अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन विथ फुल्ली एयर कंडीशन कोचेस. अब है देखते हैं इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवे ड्यूरिंग कोविड. एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इंडियन रेलवे हैज़ स्टार्टेड रनिंग श्रमिक स्पेशल ट्रेन फ्रॉम लेबर डे 1 May 2020 टू टेक माइग्रेंट्स लेबरर्स, pilgrims and tourists and students and other person stranded at different places due to lockdown. तो श्रमिक एक्सप्रेस लेबर डे से स्टार्ट किया गया था रेलवे के द्वारा. पहला श्रमिक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? लिंगमपाली तेलंगाना से हटिया स्टेशन. सो लिंगमपाली से हटिया स्टेशन तक 1225 लेबर इस ट्रेन से पहुँचे थे हटिया.
विच न्यू कोच हैज़ बिन मेड बाय इंडियन रेलवे टू टेक केयर ट्रीट कोरोना पेशेंट, कोविड केयर कोच नाम रखा गया है। इन नेक्स्ट, इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम 200 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन वॉज सेंट इन 10 कंटेनर बाय ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑफ इंडियन रेलवे, तो बांग्लादेश को भेजा गया था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, श्रमिक एक्सप्रेस चलाया गया था, कोविड केयर कोचेज़ बनाया गया था। सो ऑक्सीजन एक्सप्रेस was started by Indian Railway on 24 April 2021 to provide relief to Indian states in need of medical oxygen. The first oxygen express was run from Visakhapatnam to Mumbai by filling liquid oxygen, medical oxygen in tankers. अब देखते हैं किसान रेल के बारे में। पहला चला था देवलाली से दानापुर, दूसरा अनंतपुर से आदर्श नगर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली, ठीक है। थर्ड चला था बेंगलोर से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, फोर्थ चला था नागपुर से गन पाउडर ऑरेंज सिटी जो है महाराष्ट्र टू आदर्श नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। सो आदर्श नगर में 2 आई थी और एक अनंतपुर से और चौथा नागपुर से। अब 100वां जो है वो फ्रॉम संगोला टू शालीमार वेस्ट बंगाल और 1000वां जो है वो सावड़ा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली। अब देख लेते हैं यहाँ पर चैप्टर 5 अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का गोल है 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब टू मेक सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर, इसका भी गोल है 2023। टू एम टू इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गॉजेस बाय 100% 2023। टू कनेक्ट कैपिटल सिटीज़, अभी 80% हो चुका है, तो एक साल में बाकी 20% रेलवे को जो गॉज है ब्रॉड गॉज उसको इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य है। टू कनेक्ट कैपिटल सिटीज़ ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट थ्रू रेल नेटवर्क 2023 तक। टारगेट ऑफ जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसका टारगेट है 2024। हाउसिंग फॉर ऑल टारगेट 2024, पहले था 2022। एम टू लॉन्च डिजिटल रेडियो 2024। सप्लाई ऑफ टैप वाटर क्लीन वाटर टू एवरी हाउस होल्ड 2024 और रोड एक्सीडेंट डेथ को रिड्यूस करने का 50% का टारगेट है 2024 तक का। टारगेट टू मेक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 से 25। अभी 5th इकोनॉमी बन गया है इंडिया यूके को पीछे छोड़कर, ठीक है। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस 2025। टू मेक इंडिया टीबी फ्री कंट्री 2025। एम टू मिक्स 20% इथेनॉल इन पेट्रोल 2025 का टारगेट है। अचीविंग 100 मेट्रिक टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन 2030 का टारगेट है। एम टू अचीव 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी है 2030 तक का। 280 किलो गीगावाट ऑफ सोलर पावर 2030। टू मेक इंडिया वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030, 5वां पे पहुंच चुकी है इंडिया। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इन सर्विस सेक्टर 2030। 1 बिलियन टन रिडक्शन इन टोटल कार्बन एमिशन 2030 टारगेट। कम्प्लीटली इरेडिकेटिंग मलेरिया फ्रॉम इंडिया 2030। टीवी 2025, मलेरिया 2030। टू मेक 30% ऑफ टोटल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030। द गोल ऑफ एंडिंग HIV एड्स 2030। एम टू मेक इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन रेलवे 2030। एम टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC बाय 80% 2047। एम टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट 2047। जीरो कार्बन एमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी 2050 एंड नेट जीरो टारगेट बाय इंडिया इज 2070। अब कुछ चैप्टर 6 देख लेते हैं। न्यू डेज लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2021 से 2022, ओके। तो इंटरनेशनल अर्गेनिया डे, तो ये आर्गेन ट्री होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मनाया जा रहा है 10 मई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल अर्गेनिया डे टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्गन ट्री। इक्वालिटी डे ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर इक्वालिटी डे मना रहा है तमिलनाडु। फिर है महाकवि डे। सो महाकवि डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा ऑन द 11 सितंबर को 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्य भारती। सोशल जस्टिस डे ये भी तमिलनाडु मना रही है। EV रामास्वामी जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे। इक्वालिटी डे
14 अप्रैल एंड 17 अप्रैल को 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे। समर्पण दिवस ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय 11 फरवरी। चाबहार डे, ठीक है, 4 मार्च। चाबहार डे was celebrated on the occasion of Maritime India Summit 2021 organized by the Ministry of External Affairs in New Delhi on 4th March. नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, ठीक है। और नेशनल पर्पस क्या है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डे इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन स्पीसीज। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे। इस्लामोफोबिया डे, सो इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च, ठीक है। ये UN डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च को। मैत्री दिवस इंडिया बांग्लादेश 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें बांग्लादेश को जो इंडिपेंडेंस मिला था उसके लिए मैत्री दिवस मनाया जा रहा है 6 दिसंबर को। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, सो 27 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टुगेदर डिक्लेयर 27 दिसंबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन। सीइंग द continuous increase in the number of startups in India in the last 2 years, the central government has announced to celebrate 16 January as day for the same. गैलेंट्री डे, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा हर साल। और देश नायक दिवस मनाएगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन द सेम डे। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस एक बाल दिवस 14 नवंबर को जो मनाया जाता है और वीर बाल दिवस मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह के टू पे द होमेज ऑफ 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह ऑन 26 दिसंबर। मार्टायर्स डे, ये मुंगेर में जो 1932 में मुंगेर में जो 34 फ्रीडम फाइटर की जो शहीद हुए थे उनके लिए मनाया जा रहा है 15 फरवरी को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मार्टायर्स डे। एंड पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ये PM ने डिक्लेयर किया कोई इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त को, उसके लिए पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे। ट्राइबल प्राइड डे, तो ट्राइबल प्राइड डे ये मनाया जाएगा 15 नवंबर को। और क्यों, तो लॉर्ड बिरसा मुंडा के मेमोरी में मनाया जाएगा ऑन हिज बर्थडे 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे। जैवलिन थ्रो डे, सो 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा रिकॉग्नाइजिंग द recognition of नीरज चोपड़ा winning the only gold medal in javelin throw for India at the Tokyo Olympics। अब कुछ फेमस साइक्लोन्स देख लेते हैं। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन असानी, सो इसका नेमिंग किया श्रीलंका ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आया था ये तूफान मई 2022 में, लेटेस्ट है असानी। फिर है जवाद, जवाद आया था दिसंबर 2021 में बे ऑफ बंगाल में। और जवाद का मीनिंग जेनरस, सऊदी अरब ने नेम किया था। शाहीन नॉर्दर्न अरेबियन सी में अक्टूबर 2021 में आया था ये, और नेमिंग किया था शाहीन का कटर ने। गुलाब, इसका नेमिंग किया था पाकिस्तान ने, आया था पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड गुजरात। यास मतलब जैस्मिन, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था मई 2021 में। ओमान ने इसका नेमिंग किया था। टाउटे मतलब कि गेको और नॉइजी लिजर्ड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र में आया था मई 2021 में। यास और टाउटे एक साथ आया था, म्यांमार में ने नेमिंग किया था। बुरेवी ये तमिलनाडु और केरला ये दोनों जगह पे आया था, मालदीव्स ने नेम किया था दिसंबर 2020 में। और निवार नवंबर 2021 में तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया था, ईरान ने निवार का नेमिंग किया था, ठीक है। सो इसी के साथ अप टू हेयर वी हैव कंप्लीटेड द बुक। होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।